Hello friends, welcome you back to my channel guys. In this video we are going to discuss about black money, Hawala Bazaar, money laundering, FATF, tax haven, and we will also have a small discuss about grey list, blacklist. And now, as you know, it's a burning issue nowadays going on that Pakistan is about to be moved from grey list to blacklist, and India is putting so many evidence against Pakistan so that he must move from grey list to blacklist. So I will also have a small discussion about the difference between grey list and blacklist. Okay guys, first of all, one by one I will make you doubt clear about black money, and then Hawala Bazaar, money laundering, and FATF, and then thereafter we'll see the country that is said to be a tax haven, right? So now let's have a look. Okay friends, so let's have a look on black money. Black money, it doesn't mean that money is in black color. Never. It doesn't mean that money in black color. Means money, it is in same color, but black money includes all funds earned through illegal activity and otherwise legal income that is not recorded for tax purposes. And black money proceeds are usually received in cash from underground economic activity and as such not taxed. Means on the money, see guys, most of the people say about black money is only earned by illegal way, but not at all. Money which is earned in legal way but not, they are not paying the tax, means that is out of tax, that is said to be black money. It doesn't mean that all entire money that is earned by illegal way will also be called as black money. Means a part of this, see, money which is earned by illegal activity, that is black money, absolutely right. But a part of this, money also which is earned by legal way but it is not under the tax paid, means the payer are not paying the tax on that particular money, that money also will be called as black money, right? मीन्स यदि आप इलीगल तरीके से मनी अर्न करते हैं, कहीं से कमाते हैं, तो वो ब्लैक मनी तो है ही, साथ में वो भी मनी ब्लैक मनी है जो लीगल तरीके से भी कमाया गया है बट उस पर टैक्स पे नहीं किया गया है. इसका मतलब दैट मनी इज कॉल्ड एज अ ब्लैक मनी, राइट गाइस. नाउ लेट्स नो अबाउट हवाला. सी, ब्लैक मनी, देयर इज many ways to earn black money. Like one of them, Hawala Bazaar is most famous, and a part of it, money laundering is also famous in our country. And both of them are two famous way to earn black money, right? So let us know about Hawala. Hawala होता क्या है? Suppose means one person from India is doing job in another country and he is sending money to his own country. If he is sending money through bank, he will have to pay the tax. That would not be called as black money. But if he is not using any bank and he is not using any legal way to send money from one country to another country, means he is not paying any tax to the government, that money is called black money, right? And that way is called as hawala, means the illegal way to send money from one country to another country, right? I am going to give you an example that will make you clear guys. सपोज ये कोई व्यक्ति है जो कि दूसरे कंट्री में, सपोज सऊदी अरब में काम कर रहा है, ओके. वहाँ से वो बैंक के थ्रू पैसा, अगर भारत में अपने घर पे बैंक के थ्रू पैसा नहीं भेज करके वो क्या करता है, किसी एजेंट के थ्रू पैसा भेजता है, किसी ब्रोकर के थ्रू. मीन्स ही इज सेंडिंग मनी थ्रू एनी ब्रोकर और एजेंट who will take a very few amount as a fee, and the money is sending from one person who is sitting in Saudi Arabia to in our country without paying any tax to the government. That way is called hawala bazaar, right? Means जो व्यक्ति दूसरी जगह पे, सपोज एक व्यक्ति ए है, आई एम गोइंग टू गिव सम अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस दैट विल मेक यू वेरी क्लियर. यूएसए में कोई व्यक्ति मिस्टर रोबोट बैठा हुआ है, ओके, वहाँ पे वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और वहाँ से जब वो पैसे कमा करके भेजता है बैंक के थ्रू, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक को टैक्स देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को. अगर वो टैक्स से बचने के लिए, गाइस सी, अगर 5 लाख से कम तक कमाते हैं तो उसको तो टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है.
बट यदि उससे ज़्यादा कमाते हैं तब टैक्स देने की चिंता पड़ेगी। तो जो छोटे छोटे अमाउंट कमाते हैं, सैलरी कम है जिनका, उनको दे डोंट हैव टेंशन टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट द पर्सन हु आर अर्निंग टू मच, लाइक मोर देन 10 lakhs, करोड़ों में जो पैसे कमा रहे हैं, सपोज कोई 10 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो टोटल अगर 18% GST, 2% लाइक गेटवे और बैंक राउटर, मीन्स इन अ नेटवर्क यू सी अबाउट राउटर। राउटर क्या होता है? गेटवे होता है। तो बैंक भी क्या है? गेटवे है, एक जरिया है जो 1% टू अनदर पर्सन ट्रांजेक्शन करवाता है, तो वो भी तो कुछ टैक्स लेगा ना। तो वो 2% टैक्स अगर टोटल जोड़े तो अराउंड 40% ऑफ योर टोटल सैलरी गवर्नमेंट इज टेकिंग एज अ टैक्स। तो छोटा अमाउंट ले रहा है जो अगर 5 लाख से कम कमा रहा है तो उसको लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर जो 10 करोड़ रुपए सपोज कमा रहा है तो उसको अराउंड 5 करोड़ रुपए तो ही इज पेइंग एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो इट इज अ ह्यूज अमाउंट दैट ही इज लॉसिंग। So to save that amount, that person is using illegal way, and that is called Hawala Bazaar. In Hawala Bazaar, there are so many agents who will take your money, and another agent will be there in another country who will pay the money, right? But see, वहाँ पे जो आपसे पैसा लिया गया है वो पैसा अभी भी इंडिया कंट्री में आया नहीं है, वो पैसा वहीं पे है। बट एक एजेंट वहाँ पे रिसीव कर लिया और वो क्या करेगा? सपोज टॉम ए का पैसा ले लिया एजेंट, ओके, ब्रोकर ले लिया, और टॉम ए कहाँ पे है? अमेरिका में है, और मोहिनी बी सपोज मान लीजिए इंडिया में है, तो इसको पैसे देना है यहाँ पे। तो वो पैसा अभी भी सऊदी अरबिया में या अमेरिका में ही है, आया नहीं है वो इंडिया में। लेकिन उसका एक और ब्रोकर होगा इंडिया में, उस ब्रोकर को एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, एक कोड दे दिया जाएगा, और उस कोड को आपको जो दूसरा पर्सन जिसको आप भेज रहे हैं उसको बताना पड़ेगा उस ब्रोकर को। तो ब्रोकर या तो आपके घर को विजिट करेगा, इधर ही विल विजिट टू योर हाउस और विल कॉल यू टू हिज ओन ऑफिस, और वहाँ पे आकर के ही विल आस्क अबाउट योर पासवर्ड। टॉम यहाँ पे क्या आएगा? ये पासवर्ड आपको बता देगा। देन यू विल हैव टू स्पीक द पासवर्ड टू द ब्रोकर और एजेंट। वो क्या करेगा? उसके बाद आपको वो उतना पैसा दे देगा। मतलब money is still in Saudi Arabia और USA, it has not come to your country। और उसमें जो भी उसका फ़ी है, टैक्सेस है, वो बाद में आपस में वो दोनों अपना बंटवारा कर लेंगे। तो इस तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हवाला के जरिए पैसा आता है, जिसके थ्रू हम टैक्स भी पे नहीं करते हैं। ये नया नहीं है, ट्रेडिशनल परंपरा चली आ रही है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल मीन्स टेरर फंडिंग में और गलत ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल, टेरर फंडिंग में टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए और बहुत गलत चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, मीन्स यू कैन सी हियर, मीन्स यदि ये कंट्री इंडिया से यदि आपको सपोज स्विट्ज़रलैंड में यदि पैसे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड से पैसे इंडिया में भेजना है, तो बैंक के थ्रू भेजेंगे तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो आप तो ब्लैक मनी होगी नहीं। तो क्या करेंगे? उसको हम हवाला के जरिए, ब्रोकर के जरिए वहाँ से कोड, मैंने बता दिया टोटल प्रोसेस कैसे यहाँ पे भेजते हैं, तो यहाँ पे भेज दिया इंडिया में। ओके, तो ये पूरे ट्रांजैक्शन में आपका मात्र 10% पैसे खर्च होंगे। सपोज मान लीजिए 50% आप यदि टैक्स दे रहे हो तो उसमें से आप 10% से भी पूरा काम चला लोगे। ये पूरा विश्वास में ही चलता है गाइस। ओके, तो ये होता है पूरा हवाला बाज़ार। तो ये आजकल बहुत ही ज़्यादा मीन्स एक्टिव है टेरर फंडिंग में। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग भी दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोसेस है जो टेरर फंडिंग में सहायता कर रहा है कंट्री का। नाउ गाइस, द सेकेंड वे इज़ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में भी आ रहा है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत सारे कंट्री भी फंस रहे हैं जिनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। लाइक पाकिस्तान इज ऑल्सो केप्ट इन ग्रे लिस्ट, एंड नाउ द FATF is about to move from grey list to black list. So I also discuss on this. First of all, let us know about money laundering. Money laundering क्या होता है? अभी देख लिया आपने कि एक प्रोसेस हवाला बाजार से कैसे ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं, ओके, बिना टैक्स पे किए हुए। मनी लॉन्ड्रिंग भी सेम प्रोसेस है। मनी लॉन्ड्रिंग करने का देखिए, लाउंडर मीन्स कपड़ा धोने वाला मशीन होता है, कपड़ा धो करके टांग देता है, साफ़ हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग भी इज सिमिलर, प्रिटी सिमिलर, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू वॉश आवर मनी एंड देन ड्राई इट इन द स्काई, ओके। बट जो ब्लैक मनी है उसको लीगल तरीके से शो करा करके, मीन्स एक ऐसे तरीके से गवर्नमेंट के रूप में गवर्नमेंट को दिखा देना कि उसको पता नहीं चले कि ये ब्लैक मनी, ये इलीगल तरीके से पैसा कमाया हुआ है या इस पे टैक्स नहीं दिया हुआ है,
ओके। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। मीन्स इन विच व्हाट वी डू, वो क्या करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, जो ब्लैक मनी है उसका इस्तेमाल कैसे वाइट बनाने में करते हैं। जैसे कि बहुत सारे डुप्लीकेट कंपनी खोल दिया उन्होंने। अभी देखिए, मैं एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, पिछले टॉपिक में दिया था एग्जांपल कि वो पैसा अभी भी यूएसए या सऊदी अरब में भी है। तो वो क्या है, धीरे धीरे एक कैंडिडेट से लिया, 2 कैंडिडेट से लिया, ऐसे हज़ारों कैंडिडेट से लेकर के क्या अरबों में, मीन्स मिलियन ट्रिलियन में पैसा जब जमा हो जाता है तब उसको भेजना है इंडिया में। अब कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या करता है, इंडिया में बैठे बैठे क्या करेंगे, डुप्लीकेट फर्जी कंपनी खोल देंगे बहुत सारे, जिनको दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल कंपनीज। मीन्स ऑल दे आर डुप्लीकेट्स कंपनी। फर्जी मीन्स ओनली डॉक्यूमेंटेशन इज गोइंग ऑन, means he is showing as a company is going on running, but in fact there is no any company on the ground। तो ग्राउंड में कोई कंपनी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रूम खोल लिया, उसमें ऑफिस छोटा सा बना लिया और बहुत सारे उसमें ट्रांजैक्शन सेल्स, इतना करोड़ों का सामान खरीदा है, ऐसे ऐसे करके उसमें दिखाते रहते हैं। और दे आर मीन्स हु आर इन अनदर कंट्री, लाइक वो जो पैसा इकट्ठा हो गया है उसको भेजना है वहाँ से, तो FDI के थ्रू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, and you know foreign direct investment mein they will not have to pay any tax, so in that way they are sending money to our country as they are saying that we are going to invest in this company, the company which they have created, and that company is not running on the ground, in fact that is only on the paperwork। so इस तरीके से क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट कंपनी बना करके उसमें FDI के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं करके दोबारा से पैसे को अपने कंट्री में यहाँ पे वापस ला लेते हैं। और पता चलती है कि 1-2 साल के बाद वो बता देते हैं कि कंपनी लॉस हो गई, घाटा हो गया, कंपनी बंद हो गई, क्लोज। मीन्स गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से वो उस पैसे को फिर यहाँ पे लाते हैं। दूसरे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊँगा। देयर आर मोर वेज टू ब्रिंग बैक टू ब्लैक मनी टू आवर कंट्री, लाइक बहुत सारे ऐसे भी है, जैसे कि आप सपोज यहाँ से ब्लैक मनी को लाना है, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, सपोज स्विट्ज़रलैंड से लाना है, तो यहाँ से फ्रांस में ट्रांसफ़र कर देगा किसी भी अकाउंट को, ओके। फ्रांस में किसी भी अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देगा। वहाँ से क्या होगा, कोई उसका कैंडिडेट होगा, कैश विड्रॉ कर लेगा, फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मान लो यहाँ पे इजराइल में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर वहाँ से चाइना में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से कुछ लोगों ने उसको, उसके एजेंट होंगे, कैश निकाल लिए और फिर से नेपाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, और फिर नेपाल से कैश निकाल करके इंडिया में फॉरवर्ड कर दिया। मीन्स जैसे कैश निकालते हैं बैंक से, द लिंक, द एंटायर लिंक हैज़ ब्रोकन डाउन, सो द गवर्नमेंट और एनी लॉ विल नॉट कैच द पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो जैसे कैश निकालते हैं वहीं पे लिंक ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से भी पैसे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ब्लैक मनी है उसको ले जाया जाता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे कंपनी मैंने बताया आपको, जो डुप्लीकेट कंपनीज होते हैं, या चैरिटी के नाम पे, फंड के नाम पे क्या है, या FDI के नाम पे इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको वाइट मनी बना करके यहाँ पे आप अपने कंट्री में ला लेते हैं और उसका यूटिलाइज कहीं पे परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी वैन वगैरह परचेज कर लिया। इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्रॉम ब्लैक मनी टू वाइट मनी, ओके। Now come to know about FATF. In the recent news, guys, you all are going through this news. The current FATF means grey list issued on 21 February 2020 includes the following countries like Albania, Bahamas, Botswana, Cambodia, Ghana, Iceland, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar. It means Pakistan also. So first know about FATF. Actually, guys, what is FATF? Means, guys, FATF, the Financial Action Task Force, is a global money laundering and terrorist financing watchdog. This is also called means watching dog. Watching dog means जितने भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक ऐसा संगठन है जिसको बनाया गया है स्पेशली तौर पर किसको लुक आफ्टर करने के लिए, ग्लोबल तौर पे, मीन्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कौन कंट्री किस कंट्री को ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करा रहा है और किस कंट्री में ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारे चीज़ों पे, या टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, इन सारे चीज़ों को वॉच आउट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक छोटा सा, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। एंड FATF के पास अथॉरिटी रहती है
कि वो जैसे सपोज मान लीजिए पाकिस्तान आज ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या ज़्यादा टेरर फंडिंग कर रहा है, तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल देगा, उनको वार्निंग देगा। तो पहले तो उनको क्या है, ग्रे, जैसे कि ग्रे लिस्ट में कहने का मतलब कि द कंट्री हु आर केप्ट इन अ ग्रे लिस्ट will be in doubt, means none country is going to invest and going to provide them loan। तो वो क्या है, शक के नज़रिए में आ जाते हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में बोला जाता है। लेकिन इसके बाद क्या है, FATF वार्निंग देती है उनको। यदि वार्निंग के बावजूद भी वो नहीं सुधरते हैं, वो चीज़ को नहीं सुधार पाते हैं, देन FATF will put them from grey list to black list। means if the country is in black list, no company will provide him loan or none FDI will going to invest in that particular country, right? So means वो बदनाम हो जाते हैं पूरी तरीके से। ओके तो ये भाई साहब देखिए अभी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले ग्रे लिस्ट में थे और अभी सारे कंट्री FATF ने टोटल इनको चांस दिया था इसको सुधारने के लिए। टेरर फंडिंग कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी इनके कंट्री से। सो FATF ने इनको वार्निंग दे दी और इनको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए बोल दिया है। तो ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो भैया को फिर ना लोन देगा, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे IMF, जब कंट्री को लोन देना है तो क्या IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, तो क्या है ये लोन देंगे ही नहीं। इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो ये फिर इनको लोन ही नहीं मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए यदि लोन लेना है तो ADB, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यदि एशिया के कंट्री को लोन लेना है तो ADB लोन देती है, तो ADB में फिर इनको लोन ही नहीं मिलेगा। तो क्योंकि ये बदनाम हो चुके रहेंगे, जब भाई पहले ही से परेशान है, घबराइए मत, अभी टाइम है, सुधर जाइए। नाउ गाइस लेट अस नो अबाउट टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या है, मीन्स ऐसे कंट्री जो पहले ही से फेमस है। एक्चुअली इन कंट्री में कुछ ऐसा नियम है कि इनके यहाँ जो भी अकाउंट है जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं दूसरे कंट्री के लोग, तो वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे गवर्नमेंट को शेयर नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी इधर उधर के अकाउंट है जो वहाँ पे खोले जाते हैं, जो ब्लैक मनी वहाँ पे डिपॉजिट करती है या वहाँ पे अकाउंट खुलवा करके रखी है, क्या उनका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा ही नहीं। तो क्या होगा, जितने भी चोर होंगे जो चोरी कर रहे हैं वो तो वहीं भागेंगे और वहीं पे अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री है जिसमें फेमस तो आपको पता ही होगा, स्विट्ज़रलैंड, लंदन इंग्लैंड की कैपिटल जो है वहाँ पे, फिर मॉरिशस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिशस, फिर बाहामास, जमाइका, ये सारे ऐसे ऐसे कंट्री है कुछ ज़्यादातर फेमस कंट्री, जिसको क्या बोला जाता है, टैक्स हेवन बोला जाता है। मीन्स यू नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। अगर सपोज किसी दूसरे कंट्री में, भारत में यदि 50 करोड़ रुपए कमाया तो यदि टैक्स पे करेगा, ही विल हैव टू पे टैक्स 50% ऑफ 50 करोड़ मीन्स 25 करोड़। बट इफ ही डिपॉजिट मनी टू स्विस बैंक, he will not have to pay any tax, and he can deposit his entire money just at the convenience of 5% or 10%, and the government of Switzerland is not going to distribute and going to give any data, any information to another country. So he or she is safe here. So that for that person, means for the money launderer, these countries are heaven. That's why it is called as a tax haven country. Okay, so as you know, the tax haven country mostly like Albania, Bahamas, Botswana, Cambodia, Ghana, Iceland, Jamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Pakistan. Pakistan is also going to be added from grey list to black list, as I have spoken to you. So this is also called as a tax haven, right, country. Now if we see about our country, what our country should do in FATF, our country should give more evidence against Pakistan, so that FATF will put from grey list to black list. And if once Pakistan is kept in black list, see what will happen later. Nothing is to be worried, and India should not think more about it. Automatically he will fell down. Automatically the Pakistan will fall down in the hell that he himself has created, like terror funding and money laundering and so many illegal things. So I hope guys you have understood. So I hope you have understood
the entire differences between black money, hawala bazaar, money laundering, FATF and tax haven, right guys, if this video is really helpful to you, please like and subscribe my channel and click on bell icon for earlier notification guys, and I'll see you in the next video. Keep studying and keep updating yourself guys. See you, bye bye.